Start, sir. Thank you. Good evening, everyone. My name is Deepak. I am a member of Public Relations Committee at Ahmedabad Management Association. Uh, Today we have a very interesting topic on export opportunities and market identification of turmeric and turmeric-related products. And we have Mr. Ankit Majmudar. He is associated with AMA since long, and he is, uh, giving a talk and guidance to various universities and other colleges and consultancy providing company to various companies actually. So let me introduce Mr. Ankit. He's the founder of Global Business Solutions. He assists his clients to explore global opportunities by providing international business consulting to startups and MSME. By selecting markets, finding buyers, suppliers, and executing all the export-import related activities. He is currently consulting to the clients in heavy machinery, engineering products, home furnishing, ceramic tiles, chemicals, and various products and industries. Mr. Ankit has traveled almost 20 plus countries across Europe, South Africa, South America, Southeast Asia. He has managed international trade fair exhibitions in several countries for various industries. He has hands-on experience in managing through B2C and B2B models. His expertise lies in developing and managing ecosystem for pre-shipment and post-shipment export activities. Mr. Ankit is associated with AMA, as I told earlier, and other institute like IIIEM and other like LJ University. And he trained mentors, entrepreneurs, and students in international business. He is very well-known faculty for international business. Mr. Ankit is also a guest faculty and delivery session on international business and export-import documentation practices. He holds Master of Commerce and Master of Business Administration in Marketing. I would like to welcome Mr. Ankit on behalf of Ahmedabad Management Association with a token of amount. Now, sir, the stage is yours. Thank you. Thank you very much. So, good evening, friends. Audible? आवाज आ रही है लास्ट तक? ग्रेट. पहले तो AMA की बात कर लेते हैं कि 19th टाइम AMA को अवार्ड मिला है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से. सो हर एक सिटीज़ में अपना मैनेजमेंट एसोसिएशन होता है, उसमें AMA 19th बार उसको ये अवार्ड मिला है. सो जहाँ पे हम लोग हैं, जहाँ पे बैठे हैं, तो ये काफ़ी एक ऑनरेबल इंस्टीट्यूट है इन दैट वे. आज के सेशन में हम टर्मरिक पे बात करेंगे. दिस माय प्रोफाइल और ये फीडबैक फॉर्म है. मैं लास्ट में ये आपको बताऊंगा, आप खाली मोबाइल से इसको स्कैन करके यू नीड टू फिल दैट फीडबैक फॉर्म. ठीक है. सो लेट अस बिगिन. सो दिस माय कॉन्टैक्ट नंबर. मेरे पास विजिटिंग कार्ड कुछ कम है, तो यहाँ से आप उसका कॉन्टैक्ट मुझे कर सकते हो. आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप. तो दिस इज माई ईमेल आईडी एंड दिस माई कंपनी ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशन, जहाँ पे जैसे दीपक मैंने बताया, आई थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी कि ये मेरी कंपनी है और MSME स्टार्टअप कंपनीज को मैं असिस्ट करता हूँ, मेंटर करता हूँ, गाइड करता हूँ कि एक्सपोर्ट बिजनेस को कैसे एक्सप्लोर करें और मार्केट्स को कैसे ढूंढे, मार्केट्स ढूंढने के बाद बायर्स को कैसे ढूंढे. दैट इज द की ऑफ एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़. ठीक है. तो इस माई नंबर 9712998809. यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम. ओके. टर्मरिक पे हम लोग आज ये सेशन क्यों कर रहे हैं? फंडामेंटल. द रीजन इज अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टर्मरिक बोर्ड करके एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया है, एक एजेंसी बनाया है, एजेंसी निमुख किया है. द रीजन इज कि टर्मरिक पे काफ़ी अच्छा एक एक्सप्लोर कर सकते हैं इंडिया लेवल पे, और उसके प्रोडक्ट्स काफ़ी बाहर जाते हैं, बाहर के कंट्रीज़ में जाते हैं. किस किस कंट्रीज़ में जाते हैं, इंपोर्टर्स कौन है टॉप टर्मरिक के, टॉप एक्सपोर्टर्स कौन है, वो थोड़ा बात करेंगे. आपको थोड़ा मैं वेबसाइट के जरिए दिखाऊंगा कि टर्मरिक की प्राइजेस बाहर के मुल्कों में कैसी है, सो यू कैन फील दैट आइडिया कि इतना सारा पोटेंशियल है. तो दैट इज़ द रीज़न फॉर शोइंग यू द स्टैटिस्टिक्स, है ना. तो जब तक वो वेबसाइट आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा नहीं, वो आइडिया नहीं आएगा कि यार इस प्राइजेस पे ये चीज़ बिकती हैं. हम लोग यहाँ पे बोलते हैं बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है, बहुत एक्सपोर्ट्स है, बट एंड वी डोंट नो कि व्हाट पोटेंशियल इट हैज़. अच्छा, टर्मरिक के अलावा कैसे कैसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, आप कैसे कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, उस पर थोड़ा बात करेंगे. एंड फाइनली ये सब करने के लिए बायर्स चाहिए. तो बायर्स कहाँ से मिलेंगे?
तो वो भी एक आपको ब्रीफली बताऊंगा. इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रेन यू गाइज, क्योंकि 6 घंटे का सेशन है बायस ढूंढने का, बट देन आई विल ट्राई टू कोप अप एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल. ये देखें, इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड इवन एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन वर्ल्ड. सबसे पहले तो ये है, मतलब चाइना का टेंशन जो लेके घूम रहे हैं वो छोड़ दे. चाइना इज नॉट हियर. चाइना इनफैक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ टर्मरिक फ्रॉम इंडिया है, तो पिक्चर से हट गया, टेंशन वो नहीं है. ठीक है, हाँ, लेकिन हर एक प्रोडक्ट का किरदार अलग है, हर एक प्रोडक्ट के चैलेंजेस अलग है. तो यहाँ पे भी ये नहीं कि बहुत ईजी है, केक वॉक है. यहाँ प्रोडक्ट के खुद के कुछ चैलेंजेस है इन फॉर्म्स ऑफ सर्टिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, उस पे आते हैं. देखिए, इन 2020-23 टर्मरिक प्रोडक्शन इंडिया वाज 11 लाख टन. ठीक है, मोर देन 30 वेराइटीज टर्मरिक की है एंड इट इज ग्रोन इन 20 स्टेट्स इन द कंट्री. द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर टर्मरिक महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु. आप सोचो कि गुजरात तो है, निशानों की फर्क पैदा, लेकिन लॉजिक ये है कि गुजरात में है. अब हम किसके लिए जाने जाते हैं? फॉर आवर एंटरप्रेन्योरशिप. तो भले ही कहीं और स्टेट में वो चीजें चल रही हैं, लेकिन हाउ वी कैन कोप अप with the challenge and how we can engage the opportunity available with the world. India is more than 62% share of world trade in turmeric. ये लो, अगर 100 किलो कोई टर्मरिक कहीं दुनिया में, मुल्क में, पूरे साल में कोई खाता है, तो उसमें 62 kgs is given by India. 1.5 लाख टन टर्मरिक एंड टर्मरिक प्रोड्यूस जो हुआ था, और 207 मिलियन यानी कि 1700 करोड़ का टर्मरिक एंड टर्मरिक डेरिवेटिव्स, यानी कि टर्मरिक का पाउडर. टर्मरिक को करक्यूमा बोलते हैं, टर्मरिक पाउडर बोलते हैं, टर्मरिक को लंप फॉर्म में दिया जाता है. ये सब मिला के टोटल एक्सपोर्ट वाज अराउंड 1700 करोड़. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस क्या है? टू मेक दिस एक्सपोर्ट टू 8400 CR. दिस इज अ लॉजिक. 8400 करोड़. इसलिए ये टर्मरिक बॉडी को फॉर्म किया है अंडर द स्ट्रेटेजिक आर्म ऑफ स्पाइसिस बोर्ड. स्पाइसिस बोर्ड एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट की एजेंसी है, गवर्नमेंट ने बनाई है, हम एक्सपोर्टर के लिए बनाई है. उसमें हर प्रकार के आपके स्पाइसिस है, लेकिन टर्मरिक एक उसमें एक काफी प्रीडोमिनेंटली, इसलिए उनका अलग बोर्ड बना दिया. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर, फार्मास्यूटिकल का एक बोर्ड है नोन एज फार्माक्सिल, विच इज नोन एज एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल्स. ये ईपीसीज हमारे लिए काम करते हैं टू हेल्प द फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर. ठीक है, टॉपिक अलग है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं. अभी मेडिकल डिवाइसेस, फार्मास्यूटिकल का एक छोटा सा पोर्शन है. मेडिकल डिवाइसेस जो हैंड ग्लोव्स हो गए, आपके मास्क हो गए, आपका थर्मोमीटर हो गया, हाइपरटेंशन नापने का मशीन हो गया, ये सब चीज मेडिकल डिवाइसेस के तहत आती है. उसका एक्सपोर्ट इंडिया से हुआ था 22-23 में करीबन 24,000 करोड़. दूसरे साल हुआ 27,000 करोड़. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा यार ये तो इंपैक्ट काफी है, तो उसका अलग एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना दिया. मेडिकल डिवाइसेस, फार्मास्यूटिकल के अंदर ये आता है और इंडिपेंडेंटली चलता है. सिमिलरली इन्होंने देखा कि स्पाइसेस का एक्सपोर्ट तो बहुत है इंडिया में, लेकिन टर्मरिक का काफी है, और इंडिया मैक्सिमम प्रोड्यूस करता है, मैक्सिमम कंज्यूम करता है, मैक्सिमम एक्सपोर्ट करता है. तो क्यों ना एक अलग बोर्ड बना जाए और फोकस करके, जहां पे ये 1700 करोड़ का है, 2030 मतलब अभी 7 साल से अपने पास है, तब 8400 करोड़ पहुंचाने का टारगेट है. चलो टारगेट तो है एटलीस्ट, तो ये एक पॉजिटिव वे में हम लोग सोचे कि गवर्नमेंट ये कर रही है, वो कर रही है, तो हम उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करें. सो विद फोकस एक्टिविटीज ये एक टारगेट है. लीडिंग एक्सपोर्ट मार्केट्स फॉर इंडियन टर्मरिक आर बांग्लादेश, यूएई, यूएस, मलेशिया. ये 4 है. मैंने यहाँ पे टॉप 10 का नाम लिख के दे दिया है. सो आपको घर जाके ढूंढने की, ऑफिस में जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है कि टर्मरिक और टर्मरिक प्रोडक्ट्स का इंडिया से टॉप 10 मार्केट कौन सा है. वो यहीं पे स्लाइड दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना. आई एम ट्राइंग टू मेक योर लाइफ सिंपल. ठीक है, ये देखिए HSN कोड हर एक का होता है 091030. एवरीवन ऑफ यहाँ पे जो है उनको HSN कोड पता है. ऐसा यहाँ पे कोई भी नहीं जिनका HSN कोड नहीं पता. हर एक प्रोडक्ट का एक कोड होता है. तो इसका HSN कोड, हार्मोनाइज सिस्टमाइज कोड, ये है 6 डिजिट्स का. ये देख, मैंने सभी HSN कोड दे दिया है, पूरा संजीवनी पहाड़ दे दिया है. आपकी जड़ी बूटी ढूंढ लो कौन सी है इसमें से. सो 10 इज टर्मरिक, जिसको करक्यूमा फ्रेश बोलते हैं. 20 इज टर्मरिक ड्राइड. टर्मरिक पाउडर, बारीक जो पाउडर होता है, उसका लास्ट 2 डिजिट 30 है. यहाँ 6 तो सेम रहेंगे. 091030 विल रिमेन सेम इन 4 केस, लेकिन 10, 20, 30, 90 में अदर, बाकी के डेरिवेटिव्स. टर्मरिक का कुछ अलग प्रोडक्ट बना है तुमने, तो वो 90 के अंदर आएगा. राइट. गवर्नमेंट नॉर्म्स, नेशनल टर्मरिक बोर्ड
अंडर द स्ट्रेटेजिक आर्म ऑफ स्पाइसेस बोर्ड। स्पाइसेस बोर्ड के मैं कांटेक्ट भी आपको यहां पे दे दूंगा, किसको कांटेक्ट करना है पूछने के लिए, है ना। ये देखिए टॉप 10 टर्मरिक एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स वर्ल्ड वाइड, ये टॉप 10 एक्सपोर्टर्स है। इंडिया इज नंबर 1 एज आई हैव सेड, उसके बाद म्यांमार है, नेदरलैंड है, फिजी जो भी है, और यहाँ पे इंपोर्ट्स आपका जो कर रहा है वो, सो यूएस इज लार्जेस्ट, बांग्लादेश इज देन इंडिया इज ऑल्सो बाय समथिंग, कुछ ना कुछ लेता होगा, प्रोसेस करके कुछ बेचता होगा। ये टॉप 10 इंपोर्टर्स, तो आपके टॉप 10 एक्सपोर्टिंग मार्केट यही है, कहीं पे जाने की जरूरत ही नहीं, ये 10 मार्केट में ही आपको फोकस करना है। दुनिया में विकिपीडिया के हिसाब से कितने मुल्क है, 220 कंट्रीज। मुझे हर कंट्री में टर्मरिक बेचना है, हर कंट्री में मुझे फोन करना है, ईमेल करना है, नहीं करना है, यही 10 कंट्री में करना है, आपका काम हो गया। व्हेन यू आर फोकस तुम्हारा काम हो जाएगा। चिड़िया की आंख दिखेगी तो शिकार कर पाओगे, वरना भीम और युधिष्ठिर बन जाओगे। बनना है अर्जुन, ये अर्जुन, ओनली 10 कंट्रीज, यहीं पे मुझे फोकस करना है। डैम श्योर यहां पे मुझे जानना है कि ये कंट्रीज में मेरे टर्मरिक के लिए कौन से सर्टिफिकेशन जरूरी है, कौन से रजिस्ट्रेशन जरूरी है। बाकी सब कुछ रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मार्केट ही नहीं है। हाँ, टॉप 10 नहीं है, बाकी मार्केट्स होंगे छोटा मोटा, लेकिन ये आर दी बिगर मार्केट्स जहां पे ज्यादा पोटेंशियल है एंड देन एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी लाइज। ये देखिए एवरेज प्राइस पर टन, मैं आपको प्राइसेस भी आइडिया दे दूंगा जो मैंने वेबसाइट के जरिए निकाली है। मेरा यहाँ पे कोई क्रिएशन नहीं है, मैंने अपनी यहाँ पे कोई क्रिएटिविटी यूज नहीं की है। दिस इज नॉट माय डेटा, इज अवेलेबल ऑन गूगल एंड एवरीवेयर इज अवेलेबल, स्पाइसेस बोर्ड पे अवेलेबल है, तो चीज़ डॉक्यूमेंटेड। इन 22 वर्ल्ड एवरेज यूनिट प्राइस बाय इंपोर्टर्स, जो इंडिया से जो इंपोर्ट किया उनकी प्राइस थी $2000 पर टन ऑफ टर्मरिक। इंटू 83, 82 आप लगा लो, डिवाइडेड बाय आपका 1000 kg कर लो, पर केजी जो आपका जो गणित बैठा है उसमें बिठा दो क्या होता है क्या नहीं, यू विल गेट एन आइडिया। यूएस में सबसे ज्यादा था $4600 पर टन, ठीक है। सो यूएस इज लार्जेस्ट मार्केट। अब यूएस लार्जेस्ट मार्केट है तो माशाल्लाह मजा पड़ जाएगा। हाँ, लेकिन उसके चैलेंजेस भी है। कौन सा चैलेंजेस है? यूएस एफडी है, दैट इज मैंडेटरी। कितने में पड़ता है? करीबन 50-60 हज़ार से शुरू होता है वो सर्टिफिकेशन, अप्रोक्स रफली। फिर देन इट डिपेंड्स ऑन योर एग्जैक्ट प्रोडक्ट आपका क्या है। ये मोटा मोटा इतना खर्चा है, रुपीस 50,000 75,000 रुपये लग जाते हैं, वो तुम्हारा 1 साल की वैलिडिटी मिल जाएंगी तुमको। तो यू कैन एक्सपोर्ट टू यूएस बिकॉज दैट इज द ओनली सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड। फसाई सर्टिफिकेट एफएसए से यहाँ से लेना है, सेंट्रल आपका जो बॉडी है वो मिल जाएगा करीबन 10,000 में, फसाई हो गया। और स्पाइसेस बोर्ड का एक सर्टिफिकेट लग गया आपका, दैट्स इट। फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट 5,000 में मिलता है। कौन करके देगा? योर फॉरवर्डिंग एजेंट करके देगा। ये सब चीज़ों के लिए देयर आर लॉट ऑफ एजेंट्स, ये सबके लिए सब भरे पड़े हैं। ये कागज चाहिए देंगे, ये सर्टिफिकेट चाहिए देंगे, वो रजिस्ट्रेशन चाहिए करके देंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है 220 में से मेरे काम के कौन से मार्केट, और मार्केट मिल भी गए तो बायर्स कहां से मिलेंगे, इसके लिए कोई हेल्प नहीं है, राइट। ओके, सो लीडर्स इन टर्म ऑफ एवरेज प्राइसेस। ये देखिए फिनलैंड में पहले के साल में प्राइसेस करीबन 1200% बढ़े हैं। सो फिनलैंड कैन बी ए मार्केट। हम लोग सोच रहे हैं फिनलैंड छोटा सा पिद्दू सा कंट्री है, क्या करना है, बट वहां पे अगर मार्जिन चाहिए तो दैट इज द राइट प्लेस टू बी देयर। मैंने बिजनेस करने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट इज यू डू बल्क बिजनेस, 40-50 टन बेचते रहो, प्राइस कुछ नहीं मिलनी है। सेकंड इज यू डू मार्जिन बिजनेस, जहां पे मार्जिन ज्यादा है। यहाँ पे मार्जिन ज्यादा है। इथियोपिया, कोई सोचेगा नहीं इथियोपिया जैसा कंट्री अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कहीं पे पड़ा है, और वो आपको प्राइस इन्फ्लेटेड प्राइस दे रहा है 666%। मतलब लास्ट ईयर अगर 100 रुपया था तो वो 600 गुना ज्यादा बढ़ा है। तो यहाँ पे यू कैन अर्न मार्जिन, जहां और कहीं मार्केट्स में तुम्हारे मार्जिन तुमको नहीं मिलेंगे। फॉर एन एग्जांपल यूएई में पर किलो टर्मरिक बिकता है 450 रुपये में। आई डोंट नो द लोकल वो होलसेल प्राइस, यहाँ पे कितना 250-300 में मिलता है पर किलो अप्रोक्स। हाँ, तो वहाँ पे तुमको 450 मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पे जाओगे तो हो सकता है 1000 रुपये मिल सकता है, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। स्लोवेनिया 41%, बोलीविया 34%। ये देखिए अमंग टॉप इंपोर्टर्स, फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्मरिक इंपोर्टर्स आर चाइना, जो पिछले साल से ये साल करीबन 170% बढ़ा है। सो द ह्यूज इंपैक्ट। यूएई फिर वही 123%, मोरक्को एंड देन जापान। ये 4 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे उनका वैल्यू वाइज इंपोर्ट काफी इंडिया से बढ़ा है। सो दिस कैन बी ए वेरी गुड मार्केट। वो 10 है, उसमें ये 2-3 और ऐड कर लो, सो दैट यू प्ले अ डबल गेम। वन इज इन वॉल्यूम गेम, जहां पे मार्जिन कम है बट देन यू गेट बल्क बिजनेस, बल्क ऑर्डर। सेकंड में तुमको बल्क ऑर्डर चाहे ना मिले, फिनलैंड जैसे में एक आध कंटेनर पूरे साल में यार आधे साल में जाएगा, बट देन वो ह्यूज मार्जिन पे जाएगा। दिस इज हाउ यू बैलेंस योर बिजनेस, राइट। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड।
क्या करना है। जो जिनका बिजनेस नहीं है, जो मतलब यंग चैप्स यहाँ पे काफ़ी है, तो वो बिजनेस में नहीं है, जिनका कारोबार है उनके पास तो है, लेकिन नहीं है, वो कैसे करे, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम है, जीएसटी आईसी लेना है, आईसी विल कॉस्ट यू 500 रुपीज़, ठीक है, उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम। बैंक करंट अकाउंट का कोई खर्चा नहीं, एडी कोड लेटर 14 डिजिट का बैंक एडी कोड आता है, उसका कोई खर्चा नहीं है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे सिंस यू आर कस्टमर ऑफ दैट बैंक, लेकिन मैंडेटरी है। आइस गेट रजिस्ट्रेशन, पोर्ट रजिस्ट्रेशन, जहां से आपको एक्सपोर्ट करना है मुंद्रा से, जेएनपीटी से, वहां रजिस्ट्रेशन करा लो। कौन कराएगा? तुम्हारा फॉरवर्डिंग एजेंट कराएगा। कितने में करेगा? 2,500-3 हज़ार लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। तो 2,500-3 हज़ार ये हो गया। यू नीड ए डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जो 3,500-4,000 रुपये मिल जाती है। सीए तुम्हारा करके देता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, 2 साल की वैलिडिटी है, वो ले लो। 500 रुपये का आईसी ले लो, 3,000 हो गया। 3,000 तुम्हारा आइस गेट रजिस्ट्रेशन हो गया, 6,000 हो गया। स्पाइस बोर्ड का रजिस्ट्रेशन करा लो, जिसको हम आरसीएमसी बोलते हैं टेक्निकली, रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ये कुछ नहीं है, जैसे राजपथ क्लब के आप मेंबर हो, कर्णावती क्लब के मेंबर हो, ये स्पाइसिस बोर्ड एक क्लब है जो गवर्नमेंट ने एजेंसी बनाई है आपके लिए, हमारे लिए, उसके आप मेंबर बन जाओ। सालाना कितना भरना है? 17,800 रुपये। सो 17,000 प्लस 6,000 कितना हुआ? 23,000 था। प्लांट एंड क्वारंटाइन सर्टिफिकेट, ये जब एक्सपोर्ट करोगे तब करना है, अभी लेके नहीं बैठना है इसको। जब एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन होगा उसके पहले ये कर देना। 4-5 हज़ार का खर्चा है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इसमें आपको छप्पा लगा के देगी। जहां पे प्लांट प्रोडक्ट्स है वहां पे उसको बोलते हैं फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट। जहां पे ह्यूमन और जहां पे एनिमल्स का इन्वॉल्वमेंट है कुछ, उसको बोलते हैं सैनिटरी सर्टिफिकेट। इसलिए शॉर्ट फॉर्म में इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं? एसपीएस। अब हम लोग घबरा जाते हैं ये टेक्निकल, कुछ टेक्निकल नहीं, उसका शॉर्ट फॉर्म है एसपीएस, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी। लेकिन यहां पे आपके लिए जरूरी है फाइटोसैनिटरी, हालांकि ये मैंडेटरी है। अगर ये नहीं है तो यहीं से तुम्हारा कस्टम क्लियरेंस नहीं होगा। फॉरगेट अबाउट बायस, बायस की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट, तो करना है। उसका खर्चा 4-5 हज़ार। सो 23 + 5 28,000 रफली। फसाई FSSAI, उसका खर्चा 10,000 पकड़ लो, जब भी आपको एक्सपोर्ट करना है तब। वो जिनके पास है उनको लेने की जरूरत नहीं है, जिनने स्टेट लेवल का लिया है उनको सेंट्रल लेवल लेने की जरूरत है। 10,000 और गिन लो, 28% 38,000 प्लस योर वेबसाइट का खर्चा 10,000 पकड़ के चलो, 50,000। यू नीड टू स्टार्ट योर एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस टू एनी कंट्री आउट ऑफ 220 कंट्री। इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट 1 रुपये का नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो फिर तो तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा एफर्ट्स है बायर्स ढूंढने में। हाँ, ट्रेड फेयर एग्जीबिशन अटेंड करना है वो डिफरेंट स्टोरी, तो वो सब अलग खर्चे, वो आई एम नॉट टॉकिंग, वो तो फिर एंडलेस उसके तो एक्सपेंसेस है। बट प्राइमा फेसी यू जस्ट नीड दिस इज ओनली मैंडेटरी, दिस इज ज़्यादा कोई मैंडेटरी नहीं है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, अब ये टर्मरिक करते हैं हम लोग, तो भाई महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे यू ऑफर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। जब भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ इंडिया या हम या आप लोग बढ़ेंगे, देन ओनली यू कैन अर्न अ वेरी गुड मार्जिन। बता दो वही क्यूमिन सीड इज क्यूमिन सीड, भाई तुम बेचो या मैं बेचूं, वो उससे क्या फर्क पड़ेगा? ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। टर्मरिक भी वही, या ज़्यादा क्या फर्क लेके आओगे उसके अंदर? बट वेन यू ऑफर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, मैंगो इज मैंगो, मैंगो हम लोग जूनागढ़ से बेचते हैं, तलाला से बेचते हैं, राजकोट से बेचते हैं, मैंगो इज मैंगो। खेल तुम्हारा तब चेंज होगा जब मैंगो पल्प में आओगे, मैंगो स्क्वाश में आओगे, मैंगो जूस में आओगे, जो 12 महीने तुम्हारा प्रोडक्ट बिकेगा, 12 महीने एक्सपोर्ट होगा, 12 महीने कंज्यूम होगा। तो यहाँ पे यू हैव चेंज द गेम एंड यू हैव चेंज द बैलेंस शीट। इसी प्रकार से अगर ये टर्मरिक ऑले रेसिन एक रेसिन है जहाँ पे ये प्रोसेस फूड में बाहर की मुल्क, बाहर के कंट्रीज यूज करते हैं। हल्दी ड्रॉप्स, हमने तुलसी के ड्रॉप्स देखे थे कोविड में, 2 ड्रॉप्स पी लिए, खत्म हो गया, सुबह से लेके इम्यून सिस्टम अपनी स्ट्रॉन्ग। सिमिलरली ये ड्रॉप्स हैं, एनीवन कैन मेक, ज़्यादा कोई हाई फाई रोबोटिक टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए बनाने के लिए। मशीन्स आर अवेलेबल, मशीन्स लाओ, मशीन्स कैपिटल लाओगे, स्पाइसिस बोर्ड आपको उसमें रिम्बर्स तक दे देता है, रिम्बर्समेंट देता है आपको उसमें। कर्क्यूमिन पाउडर, हल्दी दूध, वी ऑल नो दिस। यहाँ पे टर्मरिक पिकल, अचार सब लोग खाते हैं बाहर, टर्मरिक चटनी, रॉ टर्मरिक पंजरी, लॉ टर्मरिक हलवा एंड टर्मरिक ऑयल। These are few examples जो मुझे आया कहीं पे, मैंने देखा, पढ़ा, मैंने यहाँ पे डाला है। There can be even more derivatives than what I have presented. This is an example कि ये कोई हाई-फाई टेक्नोलॉजी तुमको नहीं चाहिए, sophisticated capital equipments नहीं चाहिए, you just need basic machines to make this. मार्केटिंग, मैं यहाँ पे लिंक ओपन करके बताऊंगा कि इसका मार्केटिंग कैसे करोगे। मैं एक लिंक करके ओपन आपको बताता हूँ। प्रिकॉशंस क्या करना है जब भी आप टर्मरिक में हैं, दिस आर द प्रिकॉशंस। पैकेजिंग,
यू कैनॉट कॉम्प्रोमाइज। अगर आपको मिडल ईस्ट में टर्मरिक ऑफर करना है, आपको अरेबिक लिख के देना पड़ेगा, वहाँ पे ये इंग्लिश हिंदी नहीं चलने वाला अपना। सो यहाँ पे कॉस्ट आपका फैक्टर बढ़ने लगेगा। व्हाट वी कॉल अ ब्रांडिंग। अनदर इज मार्किंग, जहाँ पे आपको लेबल मार्किंग करना है। सर्टिफिकेशंस, जो कंट्री के सर्टिफिकेशन, यूएस में एफडीए चल रहा है, यूरोप में फूड एंड सेफ्टी का सर्टिफिकेट चाहिए, तो यूरोप तुम्हारा मार्केट पड़ता है तो लेने की जरूरत है। अगर यूरोप में तुम्हारा बेचने की ज़्यादा ख्वाहिश नहीं है, तुमको लगता है मैं आजू बाजू बांग्लादेश और चाइना से ही काम चला लूंगा, तो देन यू डोंट नीड यूरोपियन सर्टिफिकेट, यू डोंट नीड यूएस एफडीए। यूएस में बेचना है तो यूएस एफडीए इज नेसेसरी, राइट। तो जो कंट्रीज का सर्टिफिकेशन है वही लेने, हर लेके नहीं बैठ जाना है कि मेरे पास ये भी है, वो भी है, ये भी है। क्या करोगे सब सर्टिफिकेशन का झमेला बना के। एजेंसीज दैट कैन असिस्ट अस, स्पाइसेस बोर्ड एंड इंडियन एम्बेसी इन बायर्स कंट्री। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हमको पता नहीं कि मुझे कौन सी कंट्री से क्या बेचना है। तो आप कहीं पे ईमेल करना शुरू कर दोगे, मोरक्को या आपका तंजानिया से आपको इंक्वायरी आएगा कि आई वांट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, डू यू हैव दिस काइंड ऑफ सर्टिफिकेट, यू डोंट नो व्हाट सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन दैट कंट्री। तो आप किसको पूछोगे, दो बंदे आपको हेल्प करेंगे। वन इज टर्मरिक, जो जिसने नेशनल बोर्ड इंडिया ने बना के रख दिया है, स्पाइसेस बोर्ड के अंदर आता है, उनको आप कांटेक्ट करोगे। सो दिस इज माय प्रोडक्ट, मेरा HSN कोड ही है, टर्मरिक पाउडर, टर्मरिक मिल्क जो भी है। सो मुझे ये यूएस और कनाडा बेचना है, मेरे पास फंसा ये सब सर्टिफिकेट है 9 के 9। इसके अलावा उस कंट्री में सर्टिफिकेट्स क्या चाहिए आप मुझे बताएं। वो लोग आपको ये भी बताएंगे कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, और ये भी बताएंगे कि वो सर्टिफिकेट कौन सी एजेंसी से मिलता है, उसका कितना कॉस्ट है, और वो लेने में कितना टाइम लगता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, पूरा आपको इंफॉर्मेशन देंगे। ये एजेंसी इसलिए बनाई गई है हमारे लिए, टू सपोर्ट अस। एंड सेकंड इज इंडियन एम्बेसी अब्रॉड। इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करना है, गूगल में कुछ नहीं करना है, जाके लिखना है इंडियन एम्बेसी कनाडा, इंडियन एम्बेसी यूएई अबू धाबी, आपको इंडियन एम्बेसी मिल जाएंगी। वहाँ पे कांटेक्ट करना है कॉमर्स एंड ट्रेड एंड इकोनॉमिक वाले बंदे को। वो 28 के सेशन में ये कवर करते हैं, पूरा हम समझाते हैं कि हाउ यू फाइंड बायस, पर फिलहाल ये टॉपिक है तो आई जस्ट ब्रीफ यू अबाउट इट। कॉमर्स और ट्रेड के बंदे को ईमेल लिखना है कि दिस इज माय HSN कोड 6 डिजिट्स, ये मेरा प्रोडक्ट है, आपकी कंट्री में मुझे भेजना है, आपकी कंट्री में मेरे प्रोडक्ट के लिए कौन सा सर्टिफिकेशन इज मैंडेटरी, एंड दे विल रिप्लाई विद प्रिसाइज आंसर। ये क्यों रिप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे ही बंदे, गवर्नमेंट ने इंडिया के बंदे को वहां पे बिठाया, दे आर ऑल IFS IS ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, पढ़े लिखे बंदे। वो हमारे लिए है कि हमको सपोर्ट करे, हमको इन्फॉर्मेशन मुहैया करे, और हमारा टास्क ईज डाउन करे, सो दैट वी कैन एक्सपोर्ट्स मोर एंड फॉरेक्स ज़्यादा आए कंट्री में। यही एक फंडा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऐसे कंट्री का। तो ये दो एजेंसी आपको हेल्प करेंगी। लेबलिंग के बारे में नहीं पता है, आंखें बंद करके ईमेल लिख दो, सर लेबलिंग कैसा होगा, उस पे न्यूट्रिशियस वैल्यू मेंशन करना है, सर मेरे पास ये दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट, इज देयर एनी स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉर ओमान, सो मुझे नहीं पता, आई हैव नेवर बीन टू ओमान। दे विल रिप्लाई कि हाँ भाई इसमें न्यूट्रिशियल वैल्यू में एक्सपायरी डेट लगाना पड़ेगा, ग्रीन सिंबल जैसे हम लगाते हैं वेजिटेरियन पे, वहाँ पे हलाल चाहिए तो आपको हलाल सर्टिफिकेशन इज मैंडेटरी, वो 70-75 हज़ार लग जाएंगे। इफ़ योर मार्केट इज दोस अरेबिक और वहाँ पे इस्लामिक कंट्रीज में आप बेचना चाहते हो तो, लेकिन हलाल सर्टिफिकेट ले लिया 75-80,000 का, द कॉस्ट में वेरी, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देन यू कैन ऑल्सो सेल टू ऑल अरेबिक नेशंस प्लस मलेशिया इंडोनेशिया, बिकॉज मलेशिया इज 65% इस्लाम, इंडोनेशिया इज 90% प्लस इस्लाम। तो आपके पूरे दोनों मार्केट और खुल गए। हम लोग ये सोचते हैं दुबई करना है, नहीं हलाल लेके मेरे को नहीं, खर्चा नहीं पड़ेगा, बट देन यू डोंट सी अ लार्जर पिक्चर। ये देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने यहाँ पे दिए, यू कैन टेक ए स्नैपशॉट, कहाँ किसको कॉन्टैक्ट करना है। ये ईमेल आईडी है मार्केटिंग वाला, ये यहाँ नाम भी दिया है भिखू भाई गजेरा, मोबाइल नंबर भी है, यहाँ पे नीचे भी नाम दिया है किसी का, महेंद्र पाथर CEO है, ये धरती रक्षा एग्रो प्रोड्यूसर यहाँ पे अमरेली में, इनका मोबाइल नंबर है, दे कैन हेल्प यू आउट। द 3 एजेंसीज इन गुजरात हु एक्चुअली डील्स विद स्पाइसेस और स्पाइसेस एक्सपोर्टर्स को ये सब इन्फॉर्मेशन हेल्प करती हैं। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं कि इनको कांटेक्ट करना है, ये सब्जेक्ट का फॉरम इसलिए हमने बनाया कि टू प्रोवाइड दिस मैनी इन्फॉर्मेशन, ये सब अवेलेबल है भाई, इनको कांटेक्ट करो एंड देन यू टेक योर बिजनेस नेक्स्ट लेवल। ये ग्लोबल प्राइजेस है, मैं आपको एक एक करके लिंक ओपन करके बताता हूँ सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि चीज़ें कैसे चलती है। सो जस्ट वेट टिल दिस वेबसाइट गेट्स ओपन। ये जो लिंक मैंने बताई है वो इसलिए है
यहाँ पे दो वेबसाइट मैंने बताई है जस्ट फॉर योर रेफरेंस, यू कैन टेक दिस स्नैपशॉट लेटर ऑन, और आप वेबसाइट ओपन करके देखना कि इन्होंने टर्मरिक का वेबसाइट कितना बेहतरीन, टर्मरिक के अलावा काफ़ी स्पाइसेस का एक वेबसाइट बनाया है। मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ, जूम इन करता हूँ, तो यू कैन गेट दिस पिक्चर। ये दो वेबसाइट है और इंडियन कंपनी ही है, इसलिए मैंने काफ़ी एक रिसर्च करके देखा कि मुझे ये दो कंपनी अच्छी लगी और डिटेल्स पूरा काफ़ी दिया हुआ है। दे हैव ऑल्सो इंक्लूडेड वेरियस काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन ऑन द वेबसाइट। तो आप वेबसाइट बनाने जाओगे तो कैसे बनाओगे, तो ये आपको एक आइडिया मिल जाएगा रफली प्राइमा फेसी, यार इसी तरह से वेबसाइट होनी चाहिए विच इंक्लूड्स दिस मेनी पैरामीटर्स। और ये जो नीचे की वेबसाइट यहाँ पे दिखाई आपको, ये सबकी रेसिपीज है, हाँ बनाना नहीं है लेकिन जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग के 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टर्मरिक डेरिवेटिव्स यहाँ पे पूरा बताया हुआ है। ये गूगल से मुझे मिला था तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए रखा है। यू कैन रिसर्च कि आप पाउडर कैसे बनाओगे। टर्मरिक की टूथपेस्ट बनती है और टूथपेस्ट कितने में बिकती है मैं भी बताऊंगा, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये भाई जो बोल रहा है नॉट ओनली थियोरेटिकल, प्रैक्टिकली भी इसका वजूद है। दैट इज द मोटो। So I will show you all these websites. यहाँ पे इसलिए लिखा है कि आपको एक प्राइसिंग का आइडिया है, राइट। प्राइसिंग के बारे में मैं आपको एक प्रिसाइज आइडिया दे दूंगा कि कौन सी कंट्रीज में कैसे प्राइसिंग चलता है, और ये सब गूगल पे अवेलेबल है, मेरा कोई यहाँ पे कोई क्रिएशन नहीं है। ये देखिए यूरोपियन यूनियन क्या बना है, टूथपेस्ट, टर्मरिक टूथपेस्ट, क्या भाव लिखा है 7.87 यूरो। कितना ग्राम है, करीबन 100 ग्राम पर किलो। भाव क्या हुआ गिन लो, 8 यूरोस, 800 रुपये पकड़ लो 100 ग्राम के, 1900 चलता है रफली, मोटा मोटा 100 पकड़ लो, 700 रुपीज हो गए 100 ग्राम्स के लिए। 1000 किलो का 7000 रुपीज। ये और ये मेरा कुछ नहीं है, ये वेबसाइट पे है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ मेरा वेबसाइट है ही नहीं है। टूथपेस्ट हमने नहीं सुना है, टर्मरिक का टूथपेस्ट भी होता है। ये देखें वॉलमार्ट यूएस 105 ग्राम्स, हाँ ओके। गोल्डन मिल्क, जिंजर, कार्डमन, अश्वगंधा, कोकोनट, प्राइस देखें 100 ग्राम का $16। कितना भाव हुआ उसका, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए प्राइस भी लिखा है $152 पर किलो। $152 मल्टीप्लाई बाय 80 कर लो, जो भी आता है पर किलो भाव। ये है वैल्यू एडिशन का कमाल। हाईलाइट ये करना है, सिर्फ टर्मरिक नहीं बेचना है, क्योंकि वो तो बाकी सब 4 स्टेट्स हैं बादशाह बैठे हैं। अमेज़न, ये क्या है, टर्मरिक पाउडर $8.99, कितने का है,
उसका वजन कितना है? एक पैक। क्या भाव है? $40 पर केजी। कितना था? 30-20 रुपीज पर किलो, मल्टीप्लाई बाय 80। यहाँ पे होलसेल प्राइस कितने बताया था मुझे? 250-300 की बात चल रही थी। लो ये 300 है और ये 3000 है। ये जो टूथपेस्ट आपने दिखाई वो एज इट इज पूरा प्रोडक्ट यहाँ से बन के गया? हाँ हाँ एब्सोल्युटली, यस यस। एंड हिमालय का है जैसे, तो हिमालय ने उसके साथ टाई अप करके मस्ट हैव प्लेस्ड इट। टाइप किया होगा, ऑनलाइन फॉर्मेट के साथ टाइप किया होगा, ऑनलाइन पोर्टल के साथ टाइप किया होगा और अपने ही ब्रांड में बेच रहा है। देयर आर टू वेज, वन यू सेल इन योर हिमालय, तो इतना बड़ा है कि उसके ब्रांड में वो उसको परवड़ेगा और बेचेगा दादागिरी से, बिकॉज ब्रांड पे इतना इन्वेस्ट किया है, इतना रुपया लगा है। लेकिन हम लोग छोटे लोग हैं, शायद हमारा ब्रांड नहीं है, हम तो अभी अभी मार्केट में, हम तो ये सब सीख रहे हैं। तो आप सामने वाले का ब्रांड नेम लगा के बेचो, जिसको हम बोलते हैं व्हाइट लेबलिंग, प्राइवेट लेबलिंग। भाई तेरे को माल चाहिए, हाँ किस पे नाम चाहिए? जूलिया पे नाम चाहिए, तो ठीक है सर, मेरी पेज पे मैं जूलिया लिख के दूंगा, क्या की फर्क पैदा? सेल्स आएगा, देन वी कैन थिंक फॉर ब्रांड। हाँ ये ऐसे ही मिला, गूगल में ही डाला मैंने, टर्मरिक डेरिवेटिव प्राइसेस, रैंडमली 4-5 कंट्री देखा, मैंने बोला ये आप लोग ये काम लगेगा। और मुझे ये इसलिए दिखाना था कि मैंने अभी 30 मिनट जो थ्योरी बताई, यू कैन कोरिलेट कि भाई ये कुछ बोल रहा है, इसके पास सबूत प्रूफ है। हाउ विल यू बिलीव? कैसे बिलीव करोगे? हम तो जिंदगी में पहली बार मिले, जो ट्रस्ट का इश्यू है। इसलिए ये जरूरी है कि कहाँ टर्मरिक 350 रुपए किलो वाली चीज और टर्मरिक के डेरिवेटिव्स 3000-3500 वाली चीज, दैट इज द गोल, और उसी में काम करना है। और मैं आपको एक लास्ट डेटा दिखाऊंगा क्यों उसमें काम करना है, व्हाट इज द लॉजिक। सो ये हो गया। आप लुलु का देखें, दिस इज लुलु, लुलु इज दुबई, 3.75। ये क्या है? पाउडर है, सिंपल पाउडर, लिखा हुआ है टर्मरिक पाउडर। अब इसका रेट क्या आ रहा है? ये आ रहा है $19 पर किलो। सो $20 मल्टीप्लाई बाय 80। पाउडर का कम है बिकॉज इट इज जेनेरिक प्रोडक्ट। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का 3,500-4 हज़ार है, क्योंकि उसमें वैल्यू एडिशन तुमने किया है कुछ, इसलिए दैट इज हाउ डिफरेंस इज दिस। इसलिए पाउडर का भी मार्केट नहीं है, ऐसा नहीं है, मार्केट है। सो आप वहां पे भी कुछ कर सकते हो और उसके डेरिवेटिव्स, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे थोड़ा इन्वेस्ट करके उसको हाई वैल्यू पे बेच सकते हो। कंपटीशन तुम्हारा टर्मरिक पाउडर में ज्यादा है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में कंपटीशन है ही नहीं। ये हिमालय वाले तो दे आर वेरी बिग प्लेयर्स। मिड रेंज और लोअर रेंज में कोई है ही नहीं जो उनके नाम पे बना के उनको दे सकता है। हिमालय डाबर तो क्या बोलेगा, देख भाई खरीदना है खरीद, मेरे ब्रांड में ही आएगा, नो इफ्स एंड बट्स। लेकिन हम तो फ्लेक्सिबल है, किसी भी ब्रांड में दे सकते हैं। तो यहां पे यू कैन चेंज द गेम, ठीक है। लास्ट ये देखिए, बाबास टर्मरिक कहां पे है? मलेशिया, 250 ग्राम्स। फिलहाल यहाँ पे कुछ आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, आई डोंट नो, ये जब भी मैंने ओपन किया तब था। ये करीबन इसका है 6 या 8 रिंगेट्स, मलेशियन रिंगेट्स। सो मलेशियन रिंगेट्स इज अराउंड 20 रुपीज, तो उसका ये भाव हो गया। अब यहाँ पे आपने गौर किया होगा किसी ने भी, तो आई विल शो यू। ये गौर किया है किसी ने फिगर? 1.5 लाख टन टर्मरिक प्रोडक्ट्स का 1700 करोड़ का एक्सपोर्ट किया पूरे इंडिया में से। नंबर ऑफ एक्सपोर्टर्स कितने? 150 करोड़ की पॉपुलेशन में 400 लोग भी नहीं है जो टर्मरिक बेच रहे हैं। अच्छा, टर्मरिक पाउडर भी आ गया, टर्मरिक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी आ गया, हम में से कोई 2 जन भी एक्सपोर्टर बन जाएगा ना, द पर्पस इज सॉल्व्ड। दिस इज ए लॉजिक। इसलिए कंपटीशन इंडिया से है तो उतनी भी नहीं है, टोटल लोग ही 400 के नीचे कम है। लो करो, और वो भी मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि 4 स्टेट से टर्मरिक बनता है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, वहीं पे होंगे। ये 350-400 में से 300 लोग तो वहीं से होंगे। गुजरात के तो है ही नहीं, 25-30 मिल जाएंगे, मैं ढूंढने जाऊंगा तो उससे ज्यादा नहीं होंगे मेरे हिसाब से। कंपटीशन है ही क्या, चाइना है ही कहां। So not only in turmeric powder, even in derivatives, huge potential is.
इसलिए सरकार पागल नहीं है, सरकार सोच के रखा है कि इतने ही एक्सपोर्टर है। सोचो 350-400 लोग मिलके अगर 1700 करोड़ कर सकते हैं, और अगर 4 साल 5 साल 7 साल है मेरे पास 30 तक, और 400-500 जुड़ जाए भाई, ये 8400 करोड़ तो पक्की फिगर है। दे नो दिस, दे आर नॉट क्रेजी पीपल, दे नो द लॉजिक बिहाइंड दिस, ये कर सकते हैं। बट ये अवेयरनेस जरूरी है सब चीजों में। अब फाइनली एंड देन ये मैं इसको लास्ट स्लाइड आपको मैं दिखा देता हूं। ये हो गया, ये मैंने बता दिया। ओके, क्रक्स, ये बायस फाइंड करने के तरीके मैंने 21 साल में इससे ज्यादा कोई तरीका देखा नहीं। 5 यहां पे, 5 यहां पे, ये 10 तरीकों से आप बायस को ढूंढ सकते हो। येलो क्यों मार्क किया है समझाता हूं, येलो क्यों नहीं मार्क किया है समझाता हूं। जहां पे येलो कलर का मार्क किया है वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट चीज अवेलेबल है। फॉरेन रिलेटिव्स इन कंट्रीज आप कर सकते हो, वहां पे कोई बंदा है तो सर्च इंजन गूगल में ढूंढो। जैसे आपने पूछा था होलसेलर, यू जस्ट राइट टर्मरिक इंपोर्टर्स इन यूएई, टर्मरिक होलसेलर इन यूएई। भाई तुमको अगर 50 लोग ना मिले ना तो मुझे फोन करना, क्योंकि भाई नहीं मिल रहा है मुझे। यूए में मिल जाएंगे, जर्मनी में मिल जाएंगे, आपको मोस्ट प्रोबेबली जो भी 10 कंट्री उसमें मिल जाएंगे, 25-40 लोग ऐसे ही मिल जाएंगे, खाली गूगल पे सर्च करने से। कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई हाई तुम्हारा ये कोई वर्ड के साथ कोई नहीं खेलना है, वो प्रॉम्प्ट नहीं चाहिए, सिंपल वर्ड चाहिए। होलसेलर्स, इंपोर्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर्स ऑफ टर्मरिक इन दैट कंट्री, 40-50 मिल जाएंगे, उनको कॉन्टेक्ट करना है, ईमेल करना है, दैट्स इट। येलो पेजेस, हर एक कंट्री का येलो पेजेस होता है, हर उसमें ढूंढ लो आप, वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। इंडियन एम्बेसी अब्रॉड, ये मैं हमेशा कहता हूँ मेरे हर एक सेशन में, आप कोई भी इंडियन एम्बेसी कनाडा, इंडियन एम्बेसी केनिया, इंडियन एम्बेसी घाना, कॉमर्स वाले बंदे को पकड़ो, उसको लिखो सर मेरा HSN कोड ये, मेरी कंपनी ये है। डोंट राइट ईमेल फ्रॉम जीमेल, जीमेल इज कंसिडर्ड एज स्पैम या इट इज कंसिडर्ड एज अ फ्रॉड। सो मेहरबानी करके खुद की कंपनी का नाम रखिए। मेरी कंपनी का नाम ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशन है, मेरा ईमेल है ankit@globalbusiness.in। आप ऐसे ही करें, tushar@xyz.com, nirmal@abc.com, तो आपको एम्बेसी रिप्लाई करेंगी विथ लिस्ट ऑफ इंपोर्टर्स, लिस्ट ऑफ होलसेलर्स, इवन लिस्ट ऑफ एसोसिएशन बॉडीज ऑफ स्पाइसेस इन दैट कंट्री। खत्म ना भाई, यही चाहिए ना तुमको, कौन किसको मैं कांटेक्ट करूं, इनको कांटेक्ट करो, फ्रीली अवेलेबल, नो कॉस्ट। इसलिए येलो में है। पार्टिसिपेशन इन ट्रेड फेयर एग्जीबिशन नहीं करना है तो मत करें, लेकिन वहां से एग्जीबिटर्स लिस्ट में आपको 5 मिनट में दिखा देता हूं कि कहां से मिलेंगे एग्जीबिटर लिस्ट। फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, स्पाइसेस बोर्ड के तुम मेंबर हो, तो स्पाइसेस बोर्ड में तुमने 17,800 पे किए हैं टू गेट मेंबरशिप, जिसको हम RCMC टेक्निकली बोलते हैं। अब वो स्पाइसेस बोर्ड के क्योंकि तुम मेंबर हो, दुनिया में जहां कहीं भी अगर टर्मरिक की रिक्वायरमेंट है, दे विल कॉल दिस गाइज एंड स्पाइसेस बोर्ड विल शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद ऑल हिज मेंबर्स। राजपथ क्लब में मेंबर हो, ये जिम जाते हो फ्री, स्विमिंग मेंबर्स को फ्री, खाना डिस्काउंटेड। ये कंसेप्ट वही। स्पाइसेस बोर्ड तुमको हर क्वार्टर, हर एक महीने के बाद ये इंक्वायरी, स्टेट इंक्वायरी देते रहते हैं, हमको मांगना पड़ता है, हम लोग पूछते नहीं है। वर्ड आती है ना, वही बोलने से सब होता है, हम लोग बोलते ही नहीं है। आए तो आपसे जरा आप गवर्नमेंट पीपल दे डोंट वर्क इन अ वेरी कॉर्पोरेट वे, उनके पीछे पड़ना दो, इंक्वायरी दो ना सर, इंक्वायरी दो ना, इंक्वायरी दो ना, और 2 महीने बोलोगे, तीसरे महीने इंक्वायरी आ गई। बोट्सवाना में किसी को 10 टन टर्मरिक चाहिए, वेरी गुड, उसके तो बेचारे को पहुंचा ही नहीं कोई, सब US चाइना में खेल रहे हैं, इथियोपिया तक कोई गया ही नहीं है, बोट्सवाना तक कोई गया ही नहीं है। दिस पीपल आर सच। अच्छा, ये स्पाइसेस बोर्ड वाले ट्रेड इंक्वायरी देंगे, हर किसी को नहीं देंगे, जो जो इनके मेंबर है उन्हीं को मिलेगी। आप मेंबर हो, आपको मिलेगी, मैं नहीं हूं, मुझे नहीं मिलेगा, तो कंपटीशन खत्म। अच्छा, मिलेगी तो 350 के पास ही जाएगी, और 350 का खुद अपना तामझाम लेके बैठे हैं। लिमिटेड प्रोडक्शन है, एक्सपोर्ट है, डिमांड है, डोमेस्टिक करना है, वहां करना है, बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो लार्जेस्ट कंज्यूमर, यहां भी बेचना है, बाहर भी बेचना है, कितना कर पाओगे? तो दे नीड पीपल, राइट? तो ये हो गया। और ये जो है ये पेड है, पोर्टल्स, अलीबाबा, इसका बाबा, उसका बाबा, बोले बहुत सारे हैं सर इंडिया में आ रहे, तो पे करते रहो भाई, 50,000 लाख रुपए। वोल्जा है 1.5 लाख रुपए से शुरू होता है, लाख रुपए से पैकेज। डॉलर बिजनेस 1.5 लाख से शुरू होता है, करते रहो। अगर पैसे हैं, फंड्स हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, करो। बिजनेस करने के 3 तरीके हैं, मनी, एफर्ट्स, टाइम। जिसके पास जो है वो करे। मेरे पास वक्त है तो मैं वक्त करूंगा, मेरे पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, तो मैं भी पैसा लगाऊंगा। चौथा तो कोई तरीका है ही नहीं बिजनेस करने का। वेबसाइट एंड प्रमोशन थ्रू डिजिटल मार्केटिंग इज वेरी इफेक्टिव। अगर आपका वेबसाइट नो एक्सपोर्ट्स, दुनिया का कौन सा भी प्रोडक्ट इंडिया से ले लो, एक्सपोर्ट करना है, वेबसाइट इज मैंडेटरी। अगर ये नहीं है तो नहीं कर पाओगे, बिकॉज दैट इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव फॉर योर कंपनी, योर प्रोडक्ट, योर सेल्फ
इन 220 कंट्रीज या फिर जहाँ पे कर रहे हो, वेबसाइट होना मैंडेटरी है और वेबसाइट के जरिए डिजिटल मार्केटिंग कर पाओगे। सो डिजिटल मार्केटिंग ये तुम्हारा सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, करने दो। ये लॉट ऑफ एजेंसीज इन अहमदाबाद, दे कैन डू फॉर यू। तुम्हें उसमें सर नहीं फोड़ना है, वो लोग आके करेंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल एडवर्ड पे तुम्हारा गूगल पे फर्स्ट पेज पे नाम कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, वो नन ऑफ योर बिजनेस। पैसा दो 30,000 महीने का, वो करके देगा 3-4 महीने के बाद, वो भी 3-4 महीने लगाएगा। बिजनेस आएगा नहीं आएगा वो गारंटी नहीं है। दिस इज SMM, जो भी हम डिजिटल मार्केटिंग एंड SEO इज टू क्रिएट ए ब्रांड, इज नॉट टू क्रिएट सेल्स। ब्रांड ब्रिंग सेल्स, सेल्स इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ ब्रांड विच यू हैव क्रिएटेड। तो ये उसकी एक्सरसाइज है। वो बोलेगा 30,000 में इनको दे रहा हूँ कि मेरा ब्रांड ये तो तेल लेने का, मेरा कोई सेल्स ही नहीं आया, नहीं आएगा सर, 6 महीने 8 महीने रुकना पड़ेगा। तो ये सब पैसे वाली चीज़ है। अगर बजट है ऑफ कोर्स यू कैन स्पेंड। एक्जिम डेटा फ्रॉम वेरियस, जो मैंने अभी बताया, एक्जिम एजेंसीज कि आपका इन्फो ड्राइव हो गया, एक्सपोर्ट जीनियस है, इम्पोर्ट जीनियस है, zoba.com है, इन्फो ड्राइव, मतलब बहुत सारी ऐसी एजेंसीज। आप डेटा मंगवा लो कस्टम के, जहाँ पे आपको नेम ऑफ इंपोर्टर ही मिल जाएंगे, खत्म, खेल खत्म, वही चाहिए। नेम ऑफ इंपोर्टर, एफओबी प्राइस चाहिए है, किसने एक्सपोर्ट किया है, कितना एक्सपोर्ट किया है, कौन से पोर्ट से किया है, कौन से पोर्ट पे गया है, पूरी कुंडली आपके हाथ में। और क्या चाहिए, यही चाहिए ना, ले लो। बट एन कॉस्टली, 1.5 लाख 2 लाख अगर हैं, पड़े हैं, जब फंड्स हैं, डाइवर्ट करो आप। वो भी बिजनेस 1 साल के बाद ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो कंपनी को तो ढूंढना पड़ेगा ना। XYZ कंपनी ने US में इंपोर्ट की, अब XYZ कंपनी में डिसीजन मेकर कौन है, वो ढूंढते ढूंढते 3 महीने लग जाते हैं एक्सपोर्ट्स में। इसलिए एक्सपोर्ट इज वेरी इजी, ओनली थिंग इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। पेशेंस बहुत चाहिए। 1 साल तक तो भूल जाओ, कुछ नहीं होना है, हो जाए तो किस्मत है। बट ऑर्गेनिकली इट टेक्स एटलीस्ट 7-8 मंथ्स टू गेट स्मॉल ऑर्डर। पहले ये करोगे, वो आएगा, सैम्पलिंग होगा, सैंपल टेस्ट करेगा, वहाँ पे एनालिसिस करेगा, कुछ सर्टिफिकेट मांगेगा, कुछ पैकेजिंग मांगेगा, मार्किंग मांगेगा, लेबलिंग मांगेगा, प्राइवेट लेबलिंग मांगेगा, ये दो वो दो, मुझे वैक्यूम पाउच में चाहिए, मुझे जिप लॉक में चाहिए। ठीक है भाई, दिस इज व्हाई इट इज टाइम कंज्यूमिंग, इट्स नॉट डिफिकल्ट। एंड लास्ट इज पर्सनल विजिट टू बायर्स कंट्री। बायर्स के विजिट में आप कंट्री में विजिट करो, क्या है क्या नहीं करके देख लो। अनदर वे, ट्रेड फेयर एग्जीबिशन का मुझे दिखाना है आपको वो 2 चीज़, और मैं आपको यहाँ पे जो स्पाइसिस बोर्ड का जो, सो ये मैं बंद करता हूँ एंड आई विल शो यू जो स्पाइसिस बोर्ड एग्जीबिशन ट्रेड फेयर कर रहे हैं 2024 में। मैं इसको जूम इन करता हूँ, यू गेट एन आइडिया। ये स्पाइसिस बोर्ड गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन, देखो हिंदी में लिखा हुआ है। सो 2023-24 में स्पाइसिस बोर्ड जो मैंने बताया ना, जिसके अंडर में नेशनल बॉडी ऑफ टर्मरिक आता है, टर्मरिक नेशनल बॉडी, फूडेक्स जापान करके है, टोक्यो में होने वाला है, एंड IFE मैन्युफैक्चरिंग लंदन UK में होने वाला है। मार्च 24 का ये प्रोग्राम है। यहाँ पे आपको एनरोल करना है, ये उनका ईमेल है publicity.sb। यहाँ पे जो आप ट्रेड फेयर एग्जीबिशन में पार्ट करना चाहते हो वो करो, लेकिन कब करो? सबसे पहले स्पाइसिस बोर्ड के मेंबर बन जाओ 17,800 देके। जब 17,800 सालाना पे करोगे ना, तो ये जो आपका जो एग्जीबिशन ट्रेड फेयर है वो आपको कंसेशन रेट पे मिल जाएगा विद इमीडिएट इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपका 5 लाख का अगर स्टॉल है तो वो 9 बाय 9 स्क्वायर मीटर जो होगा वो आपको 2.5 में पड़ेगा, अगर 3 है तो 1.5 में पड़ेगा। 1.5 लाख तुम्हारा ये स्पाइसिस बोर्ड उठाता है टू प्रमोट इंडियन एक्सपोर्टर्स फॉरेन कंट्रीज में। ये नहीं पता अपने को, तो ये करो, तो रिसेंटली हो रही है चीज़ें। अच्छा, साथ में ये सब भी देंगे, लिखा हुआ है, देखो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, फिर ये लिख के देती है, एक्सपोर्टर शेल प्रोवाइडेड 1 ग्लास काउंटर टेबल, 2 चेयर्स, फेसिया नेम, ब्रांडिंग ऑप्शन, ब्रोशर, स्टैंडी, जो अपना एग्जीबिशन में आते बड़े स्टैंडी होते हैं बड़े, वो फैसिलिटी देंगे तुमको, 2 चेयर देंगे, 1 टेबल देंगे, सो दैट यू कैन सिट विथ योर विजिटर एंड देन डिस्कस द बिजनेस एंड कॉमर्शियल्स एंड टेक्नो कॉमर्शियल आइडिया। तो करके देंगे, तुमको एक्स्ट्रा स्पेंड करने की जरूरत नहीं, वरना एग्जीबिशन ट्रेड फेयर के खर्चे बहुत है। पहले तो स्टॉल लो, खाली जगह का, नेकेड स्पेस, उसमें डिजाइनर एजेंसी वो डिजाइन करेगी, उसका अलग खर्चा। अच्छा, डिजाइन करने के बाद बहुत अच्छा बना दिया, लाइट है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी लाओ, फर्नीचर लाओ, फर्नीचर पे ये लाओ, फिर जो सुबह जो हाउस कीपिंग वाला आता है तुम्हारा, जो रैपर वेपर कचरा लेने, उसका अलग फीस। ये सब ह्यूज कॉस्ट टू पार्टिसिपेट इन ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन। अब ये तुम्हारा स्पाइसिस बोर्ड, इंडिया की गवर्नमेंट आर्म है, वो अगर 50% ये खर्चा उठा रहा है तो क्यों नहीं करने का? मैं ये नहीं कहता कि कल जाके फर्स्ट टाइम यही करना है, पहले थोड़ा होमवर्क करें, जो फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें अवेलेबल दिखाई, वो येलो पेजेस, एम्बेसी, आपका कोई वहाँ पे ट्रेड फेयर एग्जीबिशन है उसका एग्जीबिटर लिस्ट ढूंढो, वहाँ पे कोई ढूंढो, गूगल पे होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढो, पहले वो काम करो फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग दिस। अब देखें, जो मैं आपको
प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, ये रहा कि मैंने फॉर एन एग्जांपल सो दिस इज गूगल, यहाँ पे स्पाइसेस ट्रेड फेयर्स, एग्जाम्पल यहाँ पे डाला यूरोप फॉर एग्जाम्पल। ये ट्रेड फेस्ट शुरू हो गए आपके, स्पाइसेस हब्स एंड ग्लोबल एक्सपो है, ठीक है, एक्सपो सेल हो गया, ये सब कॉन्फ्रेंसेस हैं, स्पाइसेस है, यहाँ से आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दुबई बोलता हूँ, गल्फ फूड सब काफ़ी लोगों ने सुना हुआ है, गल्फ फूड एग्जीबिटर लिस्ट 23, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं पूरा एक एग्जीबिटर का लिस्ट दिखा रहा हूँ। ये लो, यहाँ पे आपने स्पाइसेस डाला, ओपन हो रहा है, वो टाइम थोड़ा ले रहा है। ये देखो बायोफैक जर्मनी एग्जीबिटर लिस्ट, ठीक है। यहाँ से आपको पूरा एग्जीबिटर का लिस्ट मिल जाएगा। बायोफैक करके बहुत बड़ा इनका एग्जीबिशन हुआ था। ये डाउनलोड करना रहेगा आपको। इंडिया, World Spice Congress is another very good exhibition. यहाँ पे आप लिखोगे वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 एग्जीबिटर लिस्ट, यू गेट एग्जीबिटर लिस्ट, दिस आवर एग्जीबिटर लिस्ट हियर, फ्री ऑफ कॉस्ट, 157 कंपनीज, इंडियन स्पाइस है, इनका जो स्टॉल है और इनका जो है, ऐसे ही इंडिया का है, हर एक कंट्री का यहाँ पे गूगल पे अवेलेबल है। गल्फ फूड का अभी वो डाउनलोड नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से, बिकॉज ऑफ सम कनेक्शन प्रॉब्लम जो भी है, उसका जो डाउनलोडिंग का प्रॉब्लम है। गल्फ एग्जीबिटर लिस्ट आप 22-23 का डालोगे, यू विल गेट एटलीस्ट 500 एग्जीबिटर्स लिस्ट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिन्होंने वहाँ पे बूथ रखा था, नॉट ओनली फ्रॉम दुबई यूएई बट ओनली फ्रॉम अदर 150 कंट्रीज जहाँ पे वहाँ पे आए और अपना बूथ रखे। स्पाइसेस फूड आइटम्स, उसमें चाय टी कॉफ़ी वाले बंदे भी हैं, उसमें स्पाइसेस भी है, प्रोसेस फूड भी है, ये सब बंदे हैं। आप स्पाइसेस वाला फिल्टर आउट करके यू सिलेक्ट दोस्त 15-20 पीपल। कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे एग्जीबिशन फिलहाल करने की ज़रूरत नहीं है, वो लिस्ट यहीं पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल। यू फाइंड दोस लिस्ट, स्टार्ट कॉन्टेक्टिंग देम, ईमेल करो, फ़ोन करो, उनको ब्रोशर भेजो, कैटलॉग भेजो व्हाट्सएप में, ई कैटलॉग, एंड देन यू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन।
So this was the last. So we keep forum for question answers if someone would like to ask something specific. We have still 10 minutes and then we can. जी sir. Food grade and commercial grade for which, or there is only one type of grade for? Only one type of grade. फूड ग्रेड में ही आएगा ये. फार्मा वाले यूज करते हैं बट यहाँ पे टर्मरिक पे फार्मा ग्रेड अलग डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया. इट इज कंसिडर्ड एज फूड ग्रेड. खाने की चीज़ है तो यूएस में यूएस एफडीए ले लिया, आपका काम खत्म हो गया. फूड एंड सेफ्टी सर्टिफिकेट है. यूरोप का मैंने जो बताया वेरी जेनरिक फॉर ऑल यूरोपियन यूनियन नेशन जो 27 कंट्रीज है. लेकिन अगर स्पेसिफिक कुछ कंट्री का कुछ है, यूरोपियन यूनियन ने बोल दिया कि मेरे को आईएसओ चाहिए फॉर एग्जांपल, लेकिन जर्मनी के लिए बोल रहा है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स या इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स के लिए मुझे सी सर्टिफाइड ही चाहिए, तो वो आपको कहाँ से मिलेगा? एक स्पाइसिस बोर्ड को कॉन्टेक्ट करने से मिलेगा. दूसरा इंडियन एम्बेसी इन जर्मनी, बर्लिन का वेबसाइट खुल जाएगा कैपिटल का, और वहाँ पे आपको ट्रेड कॉमर्स और इकोनॉमिक का बंदा ढूंढना है. इंडियन ही होगा, वो इंडियन ही होना चाहिए, और उसको आप कांटेक्ट करना मिस्टर करके जो भी करके आप उसको लिखो कि सर मेरा ये प्रोडक्ट है, मुझे ये एक्सपोर्ट करना है जर्मनी में. आई एम अवेयर ऑफ द जेनरिक सर्टिफिकेट. इज देयर एनी मैंडेटरी एंड स्पेसिफिक सर्टिफिकेट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन जर्मनी? आपको 3 दिन का जॉब मिल जाएगा. इज वेरी सिंपल. जब कभी नहीं समझ में आए स्पाइसिस बोर्ड को पूछो, इंडियन एम्बेसी को पूछो, ये दो आपको पूरा इजी कर देंगे. जी Provided the list earlier of the people, of the 3 people हाँ. who can tell us Yes. from where to find the importers. But do they provide us from where to import the raw material or the turmeric powder नहीं. from the states you have provided, Telangana? नहीं, वो नहीं बता. मैं जब आप उनको एम्बेसी को ईमेल लिखोगे ना, तो एम्बेसी विल प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ इंपोर्टर्स इन देयर कंट्री. कहाँ से देंगे, कहाँ से लेते हैं, कितने में देते हैं, वो नहीं देंगे क्योंकि इंफॉर्मेशन फ्री है. इसलिए खाली नेम ऑफ इंपोर्टर का नाम आएगा कि मिस्टर पीटर, मिस्टर सैमुअल, मिस्टर जॉन, मिस्टर डेविड, और उसका ईमेल आईडी, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसका कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, ये पूरा दे देंगे आपको फॉर श्योर. और जहाँ से हमें खुद को इंपोर्ट करना है, बिकॉज़ वी आर गुजराती, हाँ. हम एंटरप्रेन्योर्स हैं. Correct. और हम यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करते, तो जहाँ से प्रोड्यूस होता है वहाँ के कॉन्टेक्ट्स हम कैसे ढूंढें? तेलंगाना वगैरह का हाँ. स्पाइसिस बोर्ड में अवेलेबल है. वो भी स्पाइसेस बोर्ड. हाँ, स्पाइसिस बोर्ड में अवेलेबल है. अगर स्पाइसिस बोर्ड का वो वेबसाइट अभी परफेक्ट अभी चालू है, तो मैं आपको बताता हूँ, अभी बता देता हूँ. मुझे नहीं अलाउ करेंगे क्योंकि आई एम नॉट ए मेंबर. आपको मैं वो बात दिखा देता हूँ. वंस यू बिकम ए मेंबर दे विल श्योरली अलाउड. देखो स्पाइसिस बोर्ड ये हो गया. ये मैंने स्पाइसिस बोर्ड का वेबसाइट ओपन किया. ठीक है, अब यहाँ पे देखें मार्केटिंग के लिए क्या क्या है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. ट्रेड इन्फॉर्मेशन, पहले इंडियन स्पाइसिस, लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज नहीं, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, ऑर्गेनिक स्पाइसिस, कल्टीवेशन, हार्वेस्ट, ठीक है, अपने काम का नहीं है. रिसर्च फिलहाल ज़रूरत नहीं है. क्वालिटी ज़रूरत नहीं है. मार्केटिंग, प्रमोशन, की गवर्नमेंट स्कीम, ट्रेड इन्फॉर्मेशन, स्पाइसिस पार्क्स, ट्रेड सेंटर्स, प्रोडक्ट्स, बायर एंड सेलर मीट, सपोर्ट सिस्टम, जोग्राफिकल इंडिकेशन, हेल्प डेस्क लिखा हुआ है, पब्लिसिटी, एग्जीबिशन का भी दिया हुआ है. देखो इन्होंने नोटिफिकेशन, कॉन्टेक्ट. यहाँ पे जाके कांटेक्ट करोगे तो आपको चीज़ मिल जाएंगी. ट्रेड इन्फॉर्मेशन, पॉलिसीज, एक्सपोर्ट एस्टिमेटेड, ओके. रेगुलेशन का भी दिया है. पार्क्स, बायर एंड सेलर मीट पे जब तुम करोगे ना क्लिक, तब तुमको ये लोग यहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं ना उसका दिखा देंगे. ये अभी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे पूछ रहे हैं पार्क्स का. ओके, हेल्प डेस्क फॉर एक्सपोर्टर्स. देखते हैं यहाँ पे क्या है. ये पीडीएफ फाइल है, एक पेज का. ये तो साइंटिस्ट का है.
वो लोग जो मेंबर्स होते हैं ना उनको ही इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसलिए यहाँ पे ओपन नहीं रखा है उन लोगों ने, बट इट इज अवेलेबल फॉर श्योर। और कितने स्टेट में क्या क्या बनता है और कौन कौन मेजर एक्सपोर्टर है ना वो भी देते हैं, बट मुझे वो शेयर नहीं करेंगे और वेबसाइट में नहीं करेंगे क्योंकि वो पेएबल बेसिस पे होता है। देखो स्पाइस ग्रोइंग स्टेट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखते हैं मैन्युफैक्चरर्स, देखना है क्या है क्या नहीं करके अवेलेबल है फ्री में, तो देखते हैं। मेंबर्स को ही अलाउ है, मुझे अलाउ नहीं है। जी सर। हिमालय का प्रोडक्ट उससे नहीं खरीदे लेकिन मार्केट से खरीदे और बेचे दुबई में, सपोज तो हाँ अलाउ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हिमालय से करेंगे, हिमालय से आपको खाली एक ही चीज़ लेना है, एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर उनको, और ये स्पाइसेस में नहीं है, मैं हल्दीराम का भी बेचना चाहता हूँ यूएस और कनाडा में, मैं बेच सकता हूँ। आई जस्ट नीड एनओसी फ्रॉम हल्दीराम, क्योंकि हल्दीराम बल्क में बेचेगा। आप समझे चीज़, अब इकोनॉमिक्स को समझे, बल्क में उसको पड़ेगा, उसको बिट्स एंड पीसेस में छोटे छोटे ऑर्डर को नहीं पड़। कोई मांगेगा मेरे को 5000 पैकेट्स चाहिए रामदेव हींग और रामदेव मिर्ची के, तो दे देगा। लेकिन कोई बोलेगा मेरे को 50 पीस हल्दी चाहिए, 50 पीस मेरे को 50 पैकेट 500 ग्राम 250 ग्राम का चाहिए, रामदेव बोले गेट लॉस, वी डोंट हैव टाइम। होलसेलर से आप खरीद सकते हैं और आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इन दैट केस आपको होलसेलर का एनओसी नहीं चाहिए, आपको डायरेक्ट कंपनी का एनओसी चाहिए। यस, चैलेंज मैंने वही बता रहे, चैलेंज इसके कुछ अलग है ये प्रोडक्ट के, बट कर सकते हो, पॉसिबल है, लीगली है, इथिकल है, एवरीथिंग ओके। यू जस्ट नीड एनओसी फ्रॉम डायरेक्ट रामदेव। होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर से कोई लेना देना नहीं। वाघ बकरी चाय बिकती है करीबन 1200 रुपये में जर्मनी बर्लिन में, 1200 रुपीज पर किलो, लगा लो मार्जिन। यहाँ का क्या भाव है? 300 रुपये, 350 रुपये होलसेल भाव पर किलो, होलसेल का भाव 350 किलो, 350 जाने का खर्चा होगा, आने जाने का खर्चा 700 हो गया, और 100 रुपये तुम्हारा, 150 रुपये ट्रांसपोर्टेशन पर केजी कॉस्ट गिन लो, 800, 900, 1300, 1400 रुपीज़ में बिकता है। योर नेट प्रॉफिट मार्जिन आफ्टर ऑल डिडक्टिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग कम्स टू एटलीस्ट 300 to 400 रुपीज़ पर किलो। तो फिर उसके लिए इतनी मेहनत जायज़ है। हिमालय का प्रोडक्ट हम दुबई में पकड़े और जर्मनी एक्सपोर्ट करें वहां से थ्रू सम, दैट इज ओके, दैट इज ओके। अगर दुबई में लुलू से तुम कुछ खरीद रहे हो बल्क में और वहां से करो तो हिमालय और डाबर डजंट कम इनटू पिक्चर, क्योंकि वो क्रॉस बॉर्डर, वो दुनिया अपने मुल्क के बाहर का ये हो गया, उससे कोई लेना देना नहीं। इंडिया से नहीं कर सकते, कर सकते हो बट यू जस्ट नीड एनओसी। सर आप यूएस में हो, कनाडा में हो, कर सकते हो। सर आपको 20 फीट 40 फीट में इंटरेस्ट है, आप करो। सर ये 5 टन का माल है, क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ भाई कर, 4 टन मैं देने वाला नहीं हूँ। अच्छा सर उसको 4 टन मिक्स में चाहिए सर, 250-500 किलो टर्मरिक, 250-500 किलो लाल मिर्च, मैं करूँ? हाँ करना भाई, तो दिक्कत नहीं है, एक कागज पे लिख के देंगे। प्राइस तो अलग होगा ना, छोटा क्वांटिटी लेंगे तो प्राइस तो बढ़ा। ऑफ कोर्स। नंबर 1, नंबर 2 आपको एक एग्रीमेंट भी करा सकते हो। कई लोग क्या करते हैं, दे बिकम अ ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिमालय, डाबर और एनी अदर कंपनी इन स्मॉल कंट्रीज। बोट्सवाना में अब सी डाबर और रामदेव को बोट्सवाना, इथोपिया, जिबोती, बुर्किना फासो, माली, चल कंट्री सुने ही नहीं है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है सब छोटे छोटे कंट्रीज में। उनको तो बड़ा मावा मिलता है, यूरोप में मार्जिन है, यूएस में मार्जिन है, और मिडल ईस्ट गल्फ में उनका वैल्यू ज़्यादा है, बल्क में है, तो उनको 2 बिजनेस वहीं पे मिल जाते हैं, उनको छोटे छोटे कंट्रीज पॉकेट्स में देखने की जरूरत नहीं होती। तो वहां पे यू कैन बिकम एन ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिमालय। यू पुट दैट ऑथोराइजेशन 1 पेज PDF लेटर ऑन योर वेबसाइट। इससे 2 फायदे होंगे। जब कभी बायर आपका होगा, वो सोचेगा कि मैं साला डायरेक्टली मैं परचेस करूं रामदेव से, तो वो वेबसाइट देख के पता चलेगा भाई ये रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली मेरे को एंटरटेन नहीं करेगा। एंड सप्लायर देखेगा कि ये ऑफिशियली सब कर रहा है, लीगली कर रहा है, उसने अपनी वेबसाइट में भी ये चिपकाया हुआ है जो मैंने लिख के दिया है। ही विल बी प्राउड ऑफ इट कि भाई देखो हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा रिप्रेजेंटेटिव छोटा सा अंकित नाम का बंदा है, बोट्सवाना का रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा माल वहाँ पर भी जा रहा है, हम डायरेक्ट नहीं देते, छोटा एजेंट रखा है, उसका भी ईगो सेटिस्फाई होगा। दिस इज हाउ यू नेगोशिएट। એ લોકોનું રોયલ્ટી, ટ્રેડમાર્ક, લોગો રજીસ્ટર લાખો રૂપિયા ખર્ચ કરते हैं ટુ સેફગાર્ડ ધેર ટ્રેડમાર્ક, પેટન્ટ, બધું ચાલે છે ને, ઇન્ટરનેશનલ ઇન્ટેલેક્ચુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટ્સ, વકીલો છે બધા, કરોડો રૂપિયા કમાય છે।
they protect their brands. Even if I can do trademark of this PPT, હું આ PPT ખાલી બતાવું તમને, मैं ये किसी PPT किसी को दूंगा नहीं और मुझे कोई क्लेम नहीं कर सकती तो PPT नहीं दी अंकित भाई ने, ये गुनाह किया. मैंने उसको पेटेंट किया हुआ है, उसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कर लोगो का, लोगो नो वन कैन यूज दैट लोगो चिड़िया का जो मैंने बताया. वो कर सके ना, वो रॉ मटेरियल कहीं से भी ले और अपने ब्रांड में बेचे. हिमालय को कोई दिक्कत नहीं, हिमालय का ब्रांड नहीं बेच सकता, बाकी करो ना, कोई दिक्कत नहीं. ट्रेडिंग करो. अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग करने की जरूरत नहीं है. तुमने रॉ मटेरियल ले लिया कहीं से, तुम आउटसोर्स करा लो किसी से, बहुत सारे मशीन वाले लेके बैठे हैं. हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट. ये भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि व्हेन यू वांट टू स्केल अप योर बिजनेस यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर एवरीथिंग एनीथिंग अंडर द अम्ब्रेला, यू नीड टू आउटसोर्स समथिंग. जैसे मैं अभी दीपक भाई को बता था, मैं सिम्फनी में था फ्यू ईयर्स बैक, हम लोग करीबन 12 लाख एयर कूलर बेचते हैं इंडिया में, 2-3 लाख को एक्सपोर्ट करते हैं. एक एयर कूलर हम लोग खुद नहीं बनाते, हमारे पास 10 वेंडर हैं, 1-1 लाख का ऑर्डर मिल जाता है उनको पूरे साल में, खाली सिम्फनी का नाम होता है, ब्रांड नेम, दैट्स इट. अदरवाइज हाउ यू कैन स्केल अप. हर इलेक्ट्रॉनिक्स में साहब બધા આવું જ કરે છે. अच्छा, फार्मास्यूटिकल में कौन सा मैन्युफैक्चरिंग है? 100 किलो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर जो है उसमें से 50 लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, खुद का कुछ नहीं है. तो दुनिया ऐसे ही चल रही है. हिंदुस्तान लीवर क्या करता है? मैन्युफैक्चर्ड बाय अंकित मजमूदार इन नागपुर, मार्केटेड बाय हिंदुस्तान लीवर. अच्छे ना, पाछળ दाल लख्યું હોય. दिस इज हाउ इट वर्क्स. पेमेंट टर्म स्टैंडर्डाइज नॉर्म्स तुम्हारे होंगे, तुम्हारे और बायर के बीच में. तो देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ. अभी पेमेंट टर्म का एक 3 घंटे का सेशन रखा था अभी लास्ट वीक, यहाँ पे होते हैं. मेरे अलावा भी काफ़ी फैकल्टीज हैं, वो पेमेंट टर्म्स ये इनको टर्म्स करते थे. 28 को जो सेशन है मेरा, उसमें मार्केट स्पेसिफिक किसी भी प्रोडक्ट, नहीं टर्मरिक, किसी भी प्रोडक्ट का तुम मार्केट कैसे ढूंढोगे और किसी भी प्रोडक्ट में मार्केट ढूंढने के बाद बायर्स कैसे ढूंढोगे. 6 घंटे का प्रोग्राम, 5 आवर्स का प्रोग्राम. यू कैन अटेंड दोस प्रोग्राम्स. पेमेंट टर्म्स हम 5 समझाते हैं, उसमें से कौन सी रिस्क है, किसमें रिस्क कम है, रिस्क जिसमें है तो बिजनेस कैसे करोगे वो भी समझाते हैं. हाउ यू कवर योर रिस्क भी कवर करते हैं. इनको टर्म्स है 11 टाइप्स ऑफ इनको टर्म्स, एक्सवर्क से लेकर CIF तक, वो 11 की 11 यहाँ समझाते हैं 1.5 घंटे में. तो ऑल आवर एवरीथिंग इज अवेलेबल गूगल. हमारा काम एक लोगों तक पहुंचाना ही है, हमारा और AM है, एवरीथिंग इज देयर. यस, इट्स कॉमोडिटी, हर रोज प्राइस चेंज होता है. क्यूमिन सीड का आज प्राइस अलग है, कल अलग है. इसीलिए एक चैलेंज ये है कि सिंस इट इज कॉमोडिटी, एवरी डे प्राइस चेंज होता है. हाउ यू आर गोइंग टू कोट, हाउ यू आर गोइंग टू कन्विंस योर कस्टमर कि भाई 15 दिन के बाद भी ये प्राइस होगा, तो आपको कुशन रख के चलना पड़ेगा. अगर 100 रुपये है तो आपको 102 पकड़ के चलना पड़ेगा, वो स्मार्टली करना पड़ेगा. जी सर. आइस गेट इज मैंडेटरी. यस यस, आइस गेट इज मैंडेटरी. कुछ नहीं है, आइस गेट पहले कस्टम में जाता था तो कस्टम में आप रजिस्ट्रेशन कराते थे पर्सनली, अभी ये ऑनलाइन हो गया है. आइस गेट इज अ वेबसाइट, आपका फॉरवर्डिंग एजेंट करके देगा आपको यहीं बैठे बैठे. 2 डॉक्यूमेंट्स, IC चाहिए, GST चाहिए, आपका बैंक कैंसिल चेक चाहिए, ये 3-4 डॉक्यूमेंट चाहिए, आइस गेट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका. लेट इट बी डन बाय फॉरवर्डिंग एजेंट, क्योंकि वो रोज के 10 ये करता है. बट इट इज मैंडेटरी. जैसे हम कहीं पे भी यहाँ पे जाते हैं, हमारा इमिग्रेशन होता है कि नहीं होता है, तो ये कस्टम के लिए ये इट इज मैंडेटरी, इसलिए वो लिखा था वहाँ पे. क्लियर? इज इट ओके? मोटा मोटा थिंग्स आर लिटिल बिट कंफर्टेबल देन बिफोर. ठीक है. सो थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. प्लेजर. थैंक यू. मैं आपको एक फीडबैक वाला जो है ना, मैं आपको एक स्लाइड वो बताता हूँ, सो दैट आपको एक स्कैन करके उसमें ये जरा कर देना, सो दैट इट विल ओनली टेक 5 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट. कि AM की ये रिक्वेस्ट रहती है कि आप फीडबैक्स आर ऑलवेज वैल्यूएबल. यहाँ पे नहीं है, आप अपने मोबाइल से इसको जैसे फोटोग्राफी ऐसा स्कैन कर सकते हो. यस. So thank you very much, Mr. Ankit, for giving valuable insights, theory as well as practical. I think if I would be an exporter of turmeric, then I would launch 3 products. One is turmeric khakra, which is our brand
identity of Gujarati. True. The second one is pani puri, turmeric pani puri powder, which is also a market and a value-added products, as he said. And third one is turmeric chocolates, because it's also a huge market across India and the worldwide both. So thank you very much for your insights, and I'm also thankful to all the participants for coming and attending this session. Thank you. Thank you, Deepak bhai. Thank you. ઓકે બાકી છે થઈ ગયું ને તમારે પેલું પેપર બી છે કદાચ તમારે બાકી રહી ગયું હોય તો